welcome to the YouTube channel of Level Up. This is Sankalp. I'm a graduate of National Law University Jodhpur, and we have been guiding students since the past 3 years for different law entrance examinations in India. We have our two offline centers situated in Lucknow. One is in Gomti Nagar and one is in Hazratganj. And also, in case you are willing to buy our online courses, you can check out or give us a call on the number given below, or you can also check out the same on our website. देखो, I'm making this video for an exam called MHCET. पहले तो मैं ये बता दूं, for people who are coming from Maharashtra, like we have certain students from Pune and Mumbai, even Thane also. So let's say if you are coming from Mumbai, then let's say Maharashtra, you should definitely give this exam a good try. But अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से आते हो तो I'm not giving you any false hopes. Like 85% महाराष्ट्र रिजर्वेशन है, तो जो बाकी लोग आते हैं महाराष्ट्र के बाहर से, उनके लिए द चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज आर रियली वेरी नेग्लिजिबल. तो इस एग्ज़ाम को आप पहली प्रायोरिटी बना के ना चले. बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट स्टिल द सीट्स आर वेरी लेस. तो ठीक है, वी कैन लाइक गिव आर बेस्ट, but we shouldn't be relying a lot on this examination. Although the colleges that you would be getting from this examinations are really great, colleges like GLC, Mumbai, ILS Pune, and Rizvi Law College, these three colleges are really good. और since these places have a good location advantage, तो आप वहाँ जा सकते हो. Once you are enrolled into those colleges, you would be getting good internships opportunity while you are pursuing law. तो देखते हैं, एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है. But जो like people coming from Maharashtra should definitely go into this, or like and people who are coming like the people who do not belong to Maharashtra should be preparing for this exam, keeping in mind that the chances of getting selected are actually very bleak. I don't want to give you any false hopes, but फिर भी हम prepare करेंगे, अच्छे से करेंगे. तो हमारे पास दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं. वन who would be appearing for their board examinations this year, क्योंकि क्लाट पहले हो जाता है, जैसे आपको मालूम है दिसंबर में ही हो जाता है. एंड दोज who had taken a drop for preparing for CLAT exam. मैं दोनों के लिए आपको strategies बताऊंगा, उनको focus करेंगे. And I'm very sure like we have a lot of students into GLC, ILS. You can always like अच्छा एक आपको network मिल जाएगा if you are going to those colleges. अगर like I would be giving you a strategy for both students, one who would be giving their boards and secondly who took a drop. और इसको 100 दिन में कैसे प्रिपेयर करना है उसको देखते हैं. तो पहले तो हमें एक चीज़ देख लेनी है, जो फॉर्म्स हैं MHCT के वो 3 जनवरी को लाइव हो गए थे. लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है. अगर आपको फॉर्म भरना है तो यू कैन ऑलवेज गो ऑन टू दिस लिंक. 3 जनवरी को फॉर्म लाइव हो गया था, 3 फरवरी तक फॉर्म रहेगा. तो इस ड्यूरेशन के बीच में यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन. एग्ज़ाम किस दिन है? द एग्ज़ाम इज़ ऑन 28th of April. So those people who are giving board exams, they would also be having around 40 to 45 days to prepare for the same. And as I've already mentioned, people coming from Maharashtra have an absolute chance of going into these colleges, but people who are not from Maharashtra should be giving this exam with the utmost persistence and utmost मेहनत. But at the same time, the chances are really bleak. तो उस caution, उस caveat के साथ में prepare करेंगे. अभी इसके बाद हम इस चीज़ पे आते हैं कि देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो. एक तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में होता है. तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 2 घंटे का एग्ज़ाम है. इंग्लिश एंड मराठी में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. एंड ऑल्सो वी शुड कीप इन माइंड 85% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर पीपल कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र. इज इन ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा. इसके बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें यू वुड बी गेटिंग 4 ऑप्शंस. इसमें से एक ऑप्शन चूज़ करना होगा. एनएल सैट की जैसा नहीं है, सब्जेक्टिव कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑब्जेक्टिव. कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 2 घंटे का एग्जाम है. क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश एंड मराठी. इसके बाद देखते हैं टॉपिक्स कौन से प्रिपेयर करने हैं. वन इज़ लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग. यू कैन टेक आर कोर्स एंड इफ़ यू आर एनरोल्ड समवेयर तो वहीं से पढ़ें. नहीं कर पाते हैं कोई कोचिंग तो गो फॉर एन बुक कॉल्ड यूनिवर्सल. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग इन दिस एग्जामिनेशन आर कमिंग फ्रॉम दैट बुक ओनली. बहुत एग्जॉस्टिव किताब है, यू शुड हैव वन. उससे आप लीगल एप्टीट्यूड करो. जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स के लिए यू कैन फॉलो आवर यूट्यूब चैनल. वी अपलोड फ्री लेक्चर्स ऑन अ वीकली बेसिस. नहीं तो यू कैन ऑल्सो बाय आर पेड कोर्स, या जहाँ पे भी कर रहे हो वहाँ पे करो. ज़्यादा इसमें नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे भी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंटली करते रहेंगे. लॉजिकल एंड एनालिटिकल के लिए कोचिंग कर रहे हो तो वेल एंड गुड. नहीं कर रहे हो तो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम एस चांद और आर एस अग्रवाल. दोनों ही बराबर इक्वली अच्छी हैं. बस प्रैक्टिस करनी है, एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है. किताब मैटर नहीं करेगी. लेवल अप के बुक्स या मटेरियल लेना चाहते हो देन ऑल्सो यू कैन बाय दोज. इंग्लिश के लिए भी सिंपल, यू कैन बाय नीतू मैम्स बुक. और
इसमें एक ढिल्लो की किताब आती है, उसको ले सकते हो, या जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उसके मटेरियल को फॉलो करो। ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है मटेरियल, बस कंसिस्टेंसी के साथ पूरा करना है। मैथ्स में भी आई वुड से सेम चीज़ है, एस चांद की किताब ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल की किताब ले सकते हैं। बट मोर और लेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द कंपटीशन इज रियली हाई, द क्वेश्चंस, द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट दैट मच, प्रिडिक्टेबल ही होते हैं सवाल। यूनिवर्सल की किताब को फॉलो करो ढंग से, और मोस्टली ये सारे सेक्शंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। लाइक आई हैव सीन पीपल फॉलोइंग दैट बुक एंड गेटिंग इनटू दीस कॉलेजेस विद इन 30-40 डेज ऑल्सो, सो इट्स वेरी ईजी। लीगल एप्टीट्यूड में क्या करना है, आप लेवल अप का कोर्स ले सकते हो, नहीं तो जहाँ भी इनरोल्ड है वहाँ पे पढ़ें। यूनिवर्सल की किताब मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत सारे पोर्टल्स मिल जाएंगे, इस पे एमसीक्यूज पे फोकस करो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल आ रहे हैं। बस शर्त यह है कि कट ऑफ्स आए जा रहे हैं, मतलब लोगों का प्रेसिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रैक्टिस ज़्यादा बढ़ गई, तो प्रैक्टिस करना है। क्रिमिनल लॉज, मिसलेनियस लॉज, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स में यू कैन वॉच माई 90 मिनट्स लेक्चर, इस एग्जाम के हिसाब से आपका सारा सॉर्ट हो जाएगा वहाँ से। टॉर्ट्स के लिए ऑल्सो यू कैन रेफर टू आर यूट्यूब, या यू कैन ऑल्सो बाय आर पेड कोर्स, या जहाँ से भी कर रहे हो करते रहो। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आप बस स्ट्रीमलाइन तैयारी रखें, एक रिसोर्स को पकड़ के रखो, जहाँ पे भी कर रहे हो एक रिसोर्स पकड़ो, बेसिक क्वेश्चन जितने हैं उनको सॉल्व करते चलो, कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल के लिए मैंने आपको बोला आप लेवल अप के बुक्स भी मंगा सकते हो, नहीं तो एस चांद की किताब यूज़ कर सकते हैं, आर एस अग्रवाल यू कैन यूज़। सिंपल रहता है, कोडिंग डिकोडिंग पे 10 सवाल पूछता है, ब्लड रिलेशन पे 2 क्वेश्चंस पूछता है, ये पास ईयर का एनालिसिस है, मोस्टली इसी ट्रेंड पे जाता है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल लेवल 1 के आसपास रहता है, तो कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी करने का ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल रीजनिंग में भी दे विल बी आस्किंग कॉज एंड इफेक्ट, सिलॉजिज्म, इवैल्यूएशन, इन्फरेंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशन। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो दिन के टॉपिक्स हैं, सिलेबस बना लो, एक शेड्यूल बना लो और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वी हैव सीन स्टूडेंट्स क्लियरिंग दिस एग्जाम इन 30-40 डेज एज आई सेट पहले ही। स्टैटिक जीके में इतना कुछ देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सल की किताब में अराउंड 1000 क्वेश्चंस आर गिवन ऑन स्टैटिक जीके, उन 1000 क्वेश्चंस पे देखिए वी डोंट हैव दिस टाइम ऑफ बिल्डिंग आर कंसेप्ट्स नाउ, वी जस्ट हैव अराउंड 100 डेज, तो अभी कंसेप्ट बनाने पे फोकस मत करो, बी मोर एग्जाम ओरिएंटेड, बी मोर प्रैक्टिकल, रिजल्ट निकालिए। अभी आपकी नॉलेज कोई चेक नहीं करने वाला, आप यूनिवर्सल की किताब ले आओ, उसमें जो 1000-1500 स्टैटिक के क्वेश्चंस दिए उनको टिक कर लो। मैं आपको रट्टा मारने को नहीं कह रहा हूँ, यू कैन वॉच माई लेक्चर्स, मैं रट्टे पे कभी भी फोकस नहीं करता हूँ, बट स्टिल आई एम वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड गाय एंड आई ऑल्सो वांट यू पीपल टू बी द सेम। तो अभी रिजल्ट पे फोकस करिए और कंसेप्ट हम 100 दिन बाद बना लेंगे, उसको सॉल्व कर लो, बहुत फैंसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो वहाँ पे फोकस करो, वहाँ कैसे कराया जा रहा है ये, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करोगे तो ज़्यादा बेटर है, दिस वुड टेक लेस टाइम और ज़्यादा एफिशिएंट होगे, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ज़्यादा मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे हिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो हिस्ट्री शायद महीने 2 महीने ले ले। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी जिस भी कोचिंग में इनरोल्ड हैं वहाँ से पढ़ें, नहीं इनरोल्ड हैं तो हमारे फ्री लेक्चर्स देख लें। करंट अफेयर्स के 3 मैराथन लेक्चर्स हैं 20 से 22 घंटे के, कुछ भी फैंसी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आप किस पे फोकस करोगे, पास्ट ईयर पेपर्स में हमने देखा है पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स पे फोकस करें, बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन का नहीं करना है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स सेइंग कि 1 साल की करंट अफेयर करनी है, बट मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ आप साल भर की करंट अफेयर से ज़्यादा 6 से 8 महीने की करंट अफेयर्स पे फोकस करो। इसके बाद देखिए इंग्लिश में भी सेम चीज़ें हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ग्रामर, प्रीपोजिशन, टेंसेज, एक्टिव पैसेज। 10 तक की अगर आपकी इंग्लिश अच्छी थी तो यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल इनटू दिस, नहीं है तो भी बहुत सिंपल है, लेवल अप का मटेरियल मंगा सकते हो, या जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो, बस कोशिश करो कि ये सारे टॉपिक्स कवर हो। एक एक 2 दिन के टॉपिक्स हैं, कुछ चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके चलना है, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने हैं तो आप कोशिश करो दिन के 3 से 4 खुद से याद कर लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिन के 3 से 4 कर लो, इसको पाइल अप करने से ये सॉल्व नहीं होगा। बाकी कंसेप्चुअल चीज़ें जैसे टेंसेस, प्रीपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव आप जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड है वहाँ से पढ़े, नहीं पढ़ते हो आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, कहीं से भी पढ़ लो, बस स्टिक टू वन सोर्स, स्टिक टू वन सोर्स। नहीं सोर्स है देन ऑब्वियसली यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन इन द वीडियो बिलो। मैथ्स में भी देखो सिंपल वही टॉपिक्स हैं, आपने क्लैट के लिए प्रिपेयर किए होंगे, नहीं प्रिपेयर किए होंगे, एक टॉपिक को एक दिन में उठाओ, मुश्किल से 10-12 दिन का ये आपका सारा हिसाब किताब है, बहुत मुश्किल नहीं है एग्जाम, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और मैं वापस आपको याद दिला दूँ, फॉर पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र, द चांसेस ऑफ यू गेटिंग सेलेक्टेड इनटू जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे एंड रिजवी आर रियली ब्लीक। तो while we are preparing for this examination, while we are giving our mental, physical and emotional thing upon this examination, we have to also keep into mind कि competition आउटसाइड महाराष्ट्र लोगों के लिए इज़ वेरी हाई, तो बहुत दिल नहीं लगा के तैयारी करेंगे अगर आप उस कैटेगरी में फॉलो करते हो। और सिंपल है, फॉलो ऑल ऑफ दिस, एंड इन केस यू हैव एनी डाउट और यू वांट अ वन-ऑन-वन सेशन, यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर गिवन बिलो। बाकी नहीं तो आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ते रहें, कंसिस्टेंटली करते रहें, सिलेबस के एक एक टॉपिक को एक एक दिन देने की कोशिश करो, 100 डेज आर मोर देन सफिशिएंट और हो जाएगा। एंड इफ यू आर कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र, एज ए सेट वी हैव स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम मुंबई, पुणे, लेट्स से, एंड वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम थाने ऑल्सो। सो अगर वहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको तो करना ही है यार, अगर आपका क्लैट नहीं हुआ है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग इनटू जीएलसी और आईएलएस, एंड आई सेड रिजवी इज आल्सो अ प्रीटी डिसेंट लॉ स्कूल। थैंक यू सो मच।